बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्ज़ाम्पल किया था जिसमें हमने एक सीरीज़ सॉल्यूशन फाइंड किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो सॉल्यूशन था अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 केसेस है। जो लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया है तो उसमें एक केस डिस्कस हुआ है, और वहाँ पर हमने 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड किए थे, और फिर हमने उससे जनरल सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया था। अब ये एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट केस के लिए है, जब आप लोग एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो फिर दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करें। तो इस प्रॉब्लम में हम ये डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस एंड लीनियर भी है। ज़ीरो जो है ना वो हमारे पास क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। जब आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज़ आवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. X is equal to 0 is a regular singular point, so use the Frobenious theorem, or at least we can find one solution which will be in the form of this. तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट हियर, वी गेट y इज इक्वल टू दिस, y prime and y double prime is equal to this. Just substitute the value of y and y double prime in the given problem. So what will be the so x into y double prime. सो अगर आप लोग देखें वाई डबल प्राइम को, दिस इज़ वाई डबल प्राइम, लेकिन जब एक्स मल्टीपल में आ जाए तो एक्स इधर मल्टीपल होगा, तो ए होगा n प्लस आर माइनस 2 इंटू एक्स। सो ए बन जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस आर माइनस 1, एंड सिमिलरली दिस इज़ आवर वाई. Next step is that x to the power r and x to the power r, it is both independent of the summation, so we can take it out from the summation. Next when we put n is equal to 0, so x to the we get x power minus 1, and when we put n is equal to 0 here, so we get x to the power 0. So this is here we will separate one term from this summation to get to start from the same power of x. So when we put n is equal to 0, so this will be r, this will be r minus 1, this will be c naught, and this will be x to the power minus 1. Now the summation will start from n is equal to 1 to infinity, and same expression will come here, and this is our the series of for y. Now what we will do, we will make these two series as a single series just by putting n minus 1 is equal to k, and here we will put n is equal to k. If n minus 1 is equal to k, then n is equal to k plus 1, so it will become k plus 1. Here it is n minus 1, so it will become k. Next step is that n minus 1 will be k, n is equal to k plus 1, and n start from 1, so k will start from, जब आप लोग n की जगह 1 पुट करेंगे तो k की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो k will start from 0 up to, and similarly just replace n by k. So this is our problem. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x to the power r, it will not equal to 0 because x is not 0. If x becomes 0, then what will happen to the problem? So this problem will be not a differential equation. So x is not equal to 0, this means that x to the power r will also not equal to 0. So by identity property,
this all coefficients of this series will equal to 0. Before that, we will make it a single series from these two series. So what will be, uh, it's we write these two series in a single series. Now by identity property, this coefficient r into r minus 1 c naught, it will be equal to 0, and all these coefficients will be also equal to 0. From here, this is our initial equation. C naught is not equal to 0, and the value of r is 0, and the value of r is 1. If you look here, then the difference of these two initial root is equal to 1, which is integer. So what does it mean? We can find only one solution, and the second solution, linear independent solution, we will find through another method. Here we will not find two linear independent solution from the value of these two, the value of r. From here, ck plus 1 is equal to minus ck divided by this. Next, we will choose r is equal to 1. For r is equal to 1, our coefficients, this will become r is equal to 1, so this will become k plus 2, and will become k plus 1. Now put k is equal to 0, 1, 2, 3, and up to so on. So c1 will become minus c naught divided by 0 plus 2 plus 0 plus 1, so it is minus c naught by 2. c2 is equal to, जब आप लोग k की जगह 1 put करेंगे तो it will become c2, it will become minus c1, 3 into 2. c naught की वैल्यू आप put करें तो सी नाट की वैल्यू सी वन की वैल्यू तो माइनस सी नाट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड सी नाट डिवाइड बाई 2. तो 3.2 को हम लिख सकते हैं 3 पिक्टोरियल, एंड 2 को हम लिख सकते हैं 2 पिक्टोरियल. सिमिलरली c3 फाइंड करें तो इट इज़ माइनस c2 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, माइनस सी व्हाट इज़ माइनस अपनी जगह पर, और c2 की वैल्यू हमारे पास है सी नाट डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल. तो जब हम c2 की वैल्यू पुट करेंगे तो इधर होगा 4 इंटू 3 पिक्टोरियल विल बिकम 4 पिक्टोरियल, एंड 3 इंटू 2 पिक्टोरियल विल बिकम 3 पिक्टोरियल. सो जनरली वी कैन राइट दैट, आप लोग देखें जब c3 है तो हमारे पास क्या है, माइनस सी नाट डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल इंटू 3. c2 है तो हमारे पास क्या है, सी नाट डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल इंटू 2. इधर ए जो है ना अल्टरनेशन करता है तो ये माइनस 1 पावर n आ जाएगा, सी नाट आ जाएगा. आप लोग देखें जब 3 है तो इधर 4 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल, तो हम लिख सकते हैं कि n प्लस 1 पिक्टोरियल इंटू n पिक्टोरियल. तो वी फाइंड द कोफिशिएंट्स. नाउ व्हाट वी विल डू, we will substitute these coefficient in the general solution. So in the general solution, y is equal to y1 of x, it is equal to summation n start from 0 to infinity cn x to the power n plus 1. हमारे पास क्या था, x to the power n plus r, तो r की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो it become n plus 1. फिर n की वैल्यू हमने पुट की, और नेक्स्ट हमने इस सीरीज़ को एक्सपेंड किया. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट, जब आप r इज इक्वल टू 0 के लिए भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो इसी सीरीज़ का कांस्टेंट मल्टीपल होगा. तो मीन दैट it will be not linearly independent. So how to find the second linear independent solution? We will use this formula. We discussed this formula in the previous semester, that how to find the second linear independent solution. So what is p of x in the given problem? It is 0. So e power minus integral of 0 dx, it will be 0. So e power minus 0, it will become 1. So what we obtain here, this whole term is equal to 1. So we obtain dx divided by y1. So what is our y1? This is our y1. So here it is a whole square. If you look here, here is whole square. So how we will find this whole square of this series? So you write this series two times, x minus this
एंड अगेन इसको दोबारा लिखें और फिर इसको मल्टीप्लाई करें। तो किस तरह मल्टीप्लाई होगा, x को जो x के साथ, फिर ये x सेकंड टर्म के साथ, x थर्ड टर्म के साथ। तो नेक्स्ट आप लोग इसको सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ये इसको मतलब 3-4 टर्म के साथ आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर ले, फिर जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड कर ले, तो फिर आपके पास एक सीरीज़ आएगा और ये सीरीज़ जो है ना, ये इस सीरीज़ का होल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आप लोग के पास अगर आप देखें तो ये तो डिवीजन है 1 डिवाइड बाय दिस, सो हाउ यू विल डिवाइड दिस। तो ये आसान है डिवीज़न करना कि आप 1 को किस तरह इस पर डिवाइड करेंगे। तो इधर मैंने डिस्कस किया है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ और डिवीज़न में जो मौजूद है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करें इसके साथ कि 1 आ जाए, तो 1/x²। जब 1/x² हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इट विल बिकम 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/x² के साथ तो इट विल बिकम -x। इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे 1 और -1, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x माइनस दिस। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि x वी गेट x, सो इट विल बी 1/x। तो 1/x को मल्टीप्लाई करें सारों के साथ और ये टर्म्स इधर आ जाएंगे, फिर आप लोग के पास ये आ जाएगा और कुछ टर्म्स आ जाएंगे। और फिर आप लोगों ने क्या मल्टीप्लाई करना है कि 7/12x² आ जाए। तो फिर आपने 7/12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस एंड सो मेनी टर्म्स हियर। सो आफ्टर लॉन्ग डिवीजन, इसको हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। आफ्टर लॉन्ग डिवीजन वी विल गेट we will get this 1/x² plus 1/x plus 7/12 and up to so on। अब इसकी इंटीग्रेशन है तो 1/x² की इंटीग्रेशन ये है, 1/x का ये है, 7/12 का ये है, अप टू सो ऑन। जब फिर आप इसको y1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बाकी टर्म्स y1 x एंड log ऑफ x को इसको मैंने पहले लिखा है और y1 ऑफ x इनटू दिस ये बाद में लिखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग वही केसेस दोबारा देखें जब इंडिशियल रूट्स का डिफरेंस इंटीजर हो, तो मैंने लिखा है कि आप लोग का जो सेकंड सोल्यूशन होगा y2 ऑफ x वो इसी फॉर्म में होगा y1 ऑफ x इंटू log ऑफ x प्लस y1 ऑफ x इंटू, मतलब ये हमने लिखा था, ठीक है। तो अब हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो वो आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं y = c1 y1 ऑफ x plus c2 y2 of x। So this is the second case where the difference of initial roots is an integer। next आप लोग इस तरह करें कि अगर आप लोग के पास initial roots repeated आ जाए तो सेम मेथड आप लोगों ने अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है, फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड करना है और सेकंड सोल्यूशन के लिए यही फार्मूला यूज़ करना है। इसमें y1 x का होल स्क्वायर आता है तो आप y1 x को 2 टाइम लेके और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, लाइक टर्म्स को ऐड करें। ये लॉन्ग डिवीजन आता है तो लॉन्ग डिवीजन का तरीका मैंने समझा दिया। फिर आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है तो फिर उसका जो सेकंड सोल्यूशन होगा वो आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रोबेनियस थ्योरम। तो वो जो थर्ड केस है जब रूट्स रिपीटेड आ जाए तो आप लोग खुद ट्राई करें एग्जांपल्स को, बुक आप लोग के पास होगा, ठीक है। और बाकी यही तरीका है फ्रोबेनियस थ्योरम का कि आप लोग जो है ना आपके पास 3 केसेस आ सकते हैं। एक केस में आपके पास 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं और बाकी 2 केसेस में आप लोगों ने सेकंड लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन के लिए यही फार्मूला यूज़ करना है। और सारे क्वेश्चंस का स्टेप्स तरीका एक ही है कि आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आप लोगों ने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, फिर आप लोगों ने उसी सिंगुलर पॉइंट को सीरीज़ जो आप लोग फ्रोबेनियस थ्योरम देता है उसी में पुट करना है और उसके बाद आप लोगों ने जो सीरीज़ है उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। x टू द पावर r जो इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन है उसको बायर करना है। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने सीरीज़ इंडिशियल इक्वेशन फाइंड करना है
और इंडिशियल इक्वेशन किस तरह फाइंड करेंगे, जो लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स है उसका जो कोफिशिएंट है इसको आप 0 के बराबर ले ले तो इससे आप इंडिशियल इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप लोग का क्या होगा, जो बाकी सीरीज़ है मोर देन वन उसको एज अ सिंगल सीरीज़ लिखना है और आप लोग उसका तरीका जानते हो। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उससे कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, जो रिकरेंस रिलेशन से कोफिशिएंट्स का, उसमें आप लोगों ने C1 C2 वगैरह सब कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं और फिर उसको दोबारा जो हमने सीरीज सोल्यूशन सपोज किया था उसी में पुट करना है। तो यही तरीका है और आप लोगों ने केसेस को क्या ख्याल रखना है कि कौन सा केस है, रूट्स पर डिपेंड करता है, इंडिशियल रूट्स पर। सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रोबेनियस थ्योरम। सो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर ले, तो बाकी इस लेंथी है लेकिन आसान है।